Hello everyone, I am Shrestha Samal, the host of Local Cover. Today I have a very famous guest with me, also one of my mentors, Dr. Ved Prashik. And today we are going to talk about health, immunity, and overall wellness. So, welcome Dr. Ved Prakash to Ved Prashik to my channel. And how are you Thank you. doing? You're doing excellent. How about yourself? I'm also fine. So today, before we start, Dr. Ved, I just want to talk about, how important immunity is, and how there are, like, after Corona, so many side effects of it on the health, on the immunity, or you will see that more people are having sudden heart attacks or bad, just in general, even fitness freaks who are pulling up weights and whatnot are actually not on the inside, on the immunity level, not that strong. Could you just demystify immunity for us in very simple languages for any layman out there? Okay. So, the security system of the body, the immune system, is nothing different than the police of the city. Okay. So, Right. like in any country, they have their armed forces, which basically keep the systems safe from the intruders or outside people. So, Mhm. their job is to make sure that nothing from outside the foreign bodies come in which can cause harm. Mhm. And if there's any kind of damage that happens locally because of some accident or some normal death, so their job is also to clean it up. So that's the simplest description of the immune system. So to protect the environment as well as clean up the system. Yeah, thank you so much. That's a very short and to the point description. So, before I deep dive into health and wellness, can you just tell me a little bit about your background, how you are in the domain of biomedical or biology, life sciences domain? This is always very fascinating to know a bit of the background of the interviewer before we deep dive into the topic. Sure. So about my background, I did my PhD in the field of medical research from the University of Chicago. So by background, I'm a medical researcher where I have patents, publications in top journals to make devices and technologies for early diagnosis and targeted therapy. Mhm. But in middle of PhD, I realized that my research, even though it is life-saving research, but it is very commercialized, unfortunately, by the medical industry, where a customer cured is a customer lost. And a few minutes ago, you were talking about the COVID vaccine. Similarly, many other vaccinations are heavily commercialized, and that's why there was a lot of pressure on the, I would say, different medical agencies to bring out the vaccine or the Vaccine. drug in the market very early on, even though all the clinical studies were not fully done. And recently, there have been a lot of reports where they are showing new data which shows that, hey, the vaccines that are out there from COVID are far unsafe compared to normal vaccines. Usually, if so much safety issues are there, those vaccines are never released in the marketplace. So, those are the ones which are causing a lot of those side effects that we were discussing about. Uh, and there's a doctor called Dr. Asim Malhotra. You might have heard about him. He's from UK. He has been big on this topic. So if you Yes. want to learn more about the COVID vaccine and its side effects and background behind all of that, so he's a good person to follow. Yes, Yeah. definitely. I would love to have him on the show as well. But, from childhood, like we are given these MMR vaccines and whatnot, like, which are very essential vaccines. Do you think vaccines in general are bad, or only these specific hyper specialized are bad? Because see, we have the polio drops or something. These things are actually very life saving. You cannot just completely generalize this topic. So sometimes, even me being from science, I do not have deep knowledge in the medical domain. Yeah, even I am coming from the devices domain and many other computer vision domain. But of course, I don't know molecular science the way a molecular biologist will know it. And or I definitely, if I learn up on it, I do understand, okay, this is safe, this is unsafe, to make a educated guess, right? I am confident Mm. about doing that. But what is this, like, how does a layman know ye acha hai, ye acha nahi hai?
ये नॉर्मल अनएजुकेटेड और नॉट सो हाइपर डीप एजुकेटेड पर्सन को हम कैसे समझाएंगे? हाउ विल दे नो? सो जहाँ तक बात आता है वैक्सीन का, सो इट इज वेरी केस स्पेसिफिक. सम वैक्सीन्स आर गुड, सम आर नॉट. So, and it also depends upon the person, because sometimes they do react, sometimes they do not. Like, you also got COVID vaccine, so did I. But I did not react, you reacted. So करेक्ट. there is no hard and fast general rule that one can follow here. But overall, I would say, at least in my case personally, until age of 25, I did not receive any single vaccine. My daughter is 3.5 years old. She is unmedicated, unvaccinated so far. Now, Yes. that is a personal choice that we make because we are very much into natural health. She was born at home, actually, not even in hospital. Yes. So we conceived naturally after a lot of health challenges, and then we did a home birth, not hospital birth, and we made sure that we do the right parenting in that sense. So I'm not saying that I'm anti-vaccine, but at the end of the day, you have to take your own call. Which one is absolutely needed and which one is not. So, of course, your pediatrician is going to say that, hey, everything is required, Mhm. because at the end of the day, they also make some money in the back end. Mhm. But in here, you will have to make a decision. Like I said, some vaccines are basic, जैसे कि DPT, MMR, and even polio also, because it has been several years since the last case of polio was seen in India. Correct. Just because it is being given, so the trend is continuing. So in that sense, we have to always check the data and ask educated people that, hey, अभी क्या चल रहा है? Is it relevant anymore or not? So I mean, Dr. Ved, this is the thing, normally people discuss करते हैं बिग बॉस में क्या हुआ. कोई no one is breaking down science in simple digestible format. और ये मेरी कोशिश है. That's why I have a very English kind of a format, and I even plan to, thank God that now we have AI that is translating the subtitles. But ये बहुत important है कि हम थोड़ा हिंदी में भी बोले, क्योंकि कमेंट्स में भी आता है कि आप हिंदी में बोलिए. ये जो पार्ट है कि कौन सा वैक्सीन लेना है और पॉसिबल है कि नहीं लेना है और कैसे सोचना है, आई थिंक इसके बारे में कभी कंटिन्यूअस टॉपिक्स नहीं होता अनलेस एंड अनटिल कि कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी आके, जैसे अमिताभ बच्चन जी, वो पोलियो वैक्सीन के ब्रांड एम्बेसडर थे. वो राइट चॉइस थे क्योंकि उनकी पहुंच उतनी थी, तो उस हिसाब से भी लोगों ने ले लिया. बहुत लाइक जैसे होता है ना, उनको बैरियर कोई नहीं था मना करने के लिए, ठीक है. और वो बहुत बड़ा नेशन वाइड मूवमेंट था. अभी भी लोगों के दिमाग में दो बूंद जिंदगी के जो ऐसे अच्छे अच्छे स्लोगन्स बने थे, और ये इतना बड़ा मैसिव चीज हुआ था. लेकिन अगर आप देखें, जैसे वुमेन्स हेल्थ के बारे में भी इतना कुछ पता नहीं है. जैसे जैसे यूट्रस कैंसर हो रहा है, ओवेरियन कैंसर हो रहा है. ये अभी कैंसर भी बहुत इंक्रीज हो रहा है, डायग्नोस ज्यादा हो रहा है कंपैरेटिवली. पहले पहले पता ही नहीं चलता था, अरे क्या हो गया, क्योंकि ना ऐसे डिवाइसेस थे, ना हमारा वातावरण इतना प्रदूषित था. इट वाज नॉट सो पोल्यूटेड. हम लोग काफी फ्रेश चीजें खा रहे थे. अभी के मार्केट में बहुत हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पॉसिबल ही नहीं है एक सिंगल इनकम से घर चले. सेकेंडली ये हुआ है कि इस वजह से इंसान थका हारा आता है काम से. काम में भी बहुत हमें अपने आप को अपग्रेड करना होता है. फिर एक फैमिली है, फिर लोग आजकल सब लोग अवेयर हो गए हैं कि उनका एक डे जॉब नहीं होता है. वो अपना धीरे धीरे अपना अपना ड्रीम भी बिल्ड कर रहे होते हैं. जैसे आप स्टार्टअप कह लें, कोई प्रकार का सर्विस कह लें, तो बहुत सारे लोग को अभी इतना रियलाइजेशन हो गया कि करना बहुत जरूरी है. लेकिन ये सब में एक चीज बहुत कॉमन हो चुका है कि अर्ली डेथ हो रही है, बहुत सारा कैंसर ज्यादा बाहर निकल के आ रहा है. तो ये सब के बारे में ज़रा आप पैकेज्ड फूड्स और कैसे हम एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल, एक हम चाहते हैं कि हम नेचर की तरफ जाएँ, इंडियन कल्चर में ये है आयुर्वेदिक. बट अब्रॉड या कहीं भी आप बाहर चले जाओ, दे आर मेनली नॉन-वेजिटेरियन, नॉन-वेज लोग ज़्यादा खाते हैं. ऐसे में हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें? मैं ये भी नहीं कह रही कि नॉन-वेज बुरा है, लेकिन वो कहाँ काटा गया है, कौन से हाइजीनिक कंडीशन में रहा है. कहीं आपको खाने से डायरिया या
और कोई बीमारियां ना हो, हम कैसे अपने आप को हम्म सुरक्षित रख पाए। ओके, सो स्टार्ट विथ कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जहाँ तक बात आता है कि वेज या नॉन वेज, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जी। जो बीमारियां पेड़ को होती है वैसी बीमारियां एनिमल्स को भी होती है। तो थैंक वो यू सारा फॉर क्लैरिफाइंग दिस, बिकॉज ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि लोगों को लगता है अरे मेरा तो प्योर वेज डाइट है, मुझे कैसे हो गया। अरे हाँ, तो जो पेड़ पौधों में जो कीटनाशक डाला है उससे तो आपको करेक्ट, कोई नहीं बचा करेक्ट, सकता। हाँ। सो एंड इन फैक्ट इफ यू ईट वेजिटेरियन देन यू नीड टू ईट मोर, आपको ज़्यादा खाना पड़ रहा है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कम होता है कंपेयर टू एनिमल प्रोडक्ट्स। करेक्ट। अभी एग्रीकल्चर होने के बाद में ये सारा कुछ हुआ है कि हमारा वेजिटेरियनिज्म बढ़ चुका है। लेकिन अभी से 12,000 साल पहले जब हम लोग एग्रीकल्चर नहीं करते थे, जब हम लोग जंगल में रहते थे नियंडरथाल्स की तरह, तो उस समय जो है सो हमारा 60 to 70% डाइट जो होता था वो नॉन वेज होता था, और 30-40% जो है वेज होता था। एंड वो हमारा अर्थ में एग्जिस्टेंस का 99% ऑफ टाइम है। सिर्फ अच्छा। 1% टाइम जो है हम लोग वेजिटेरियनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा। सो हमारा ओके। बॉडी इज ऑलरेडी इवॉल्व टू हैंडल बोथ साइड्स ऑफ फूड, बट व्हाट इट इज नॉट ओके टू हैंडल इज प्रोसेस्ड फूड। जब हम लोग जी। जंगल में रहते थे, जो हमारा लाइफ ऐसा होता था, सिंथेटिक तो फूड जो कह लीजिए, हाँ, कलर आ गया, ये हाँ, आ गया, पता नहीं क्या हाँ, फैंसी फूड, करेक्ट, जो फैंसी जिसको प्रोसेस्ड फूड कहते हैं, कि किसी भी तरह से आपने उसको नॉर्मल जो नेचर में पाया जाता है उससे उसको बदलाव करके जब खा रहे हो पी रहे हो, तो दैट इज व्हाट कॉजेस मेनी मेनी प्रॉब्लम्स लाइक दैट, क्योंकि यू आर इन अ वे ईटिंग प्री डाइजेस्टेड फूड। जैसे कि अच्छा। अगर आप हमारे जो फूड पिरामिड दिखाते हैं कि जी। आपको जो है सो स्कूल में कॉलेज में सिखाते थे कि भाई हमें ढेर सारा हमें चावल गेहूं वगैरह, हाँ, हाँ, पिरामिड, फूड पिरामिड जो हाँ, कहते थे, हाँ, हाँ, उसमें हाँ, अंडे और वो, हाँ, फ्रूट्स होते थे, वेज होते थे, पल्सेस होते थे, पोल्ट्री होता करेक्ट, था, करेक्ट, राइट, करेक्ट, करेक्ट। करेक्ट। सो वो जो फूड पिरामिड होता है, द रियल पिरामिड वाज नेवर द वन विच अभी जो हम लोग को स्कूल में सिखाते हैं। अच्छा। 1992 में वो पब्लिश हुआ था, अभी जो हम लोग को सिखाते हैं, दैट टू वाज अ रिजल्ट ऑफ द शुगर ट्रेड कॉर्पोरेशन पेइंग अ लॉट ऑफ मनी टू द लॉबिंग। हाँ। लॉबिंग, उसको कहते हैं जो भी है, कि कुछ डॉक्टर्स को पे किया गया कि भाई आप जो है तो सारा बीमारियों का जो ब्लेम है वो कार्बोहाइड्रेट से हटा करके डाल दो फैट के ऊपर। और इसीलिए हाँ। भी आपको लो फैट मिल्क, लो फैट दिस, लो फैट दैट, मीट वगैरह सब कुछ मिलता है। ठीक है, लेकिन लो फैट करने से कुछ हुआ नहीं फायदा, बल्कि प्रॉब्लम जी। और बढ़ गया। प्रॉब्लम्स बढ़ गए, हाँ, ये जो, लेकिन ये स्किम्ड मिल्क जो अभी भी मैं देखती हूँ, स्किम्ड मिल्क, ये कहते हैं, लाइक आपको लगता है कि स्किम्ड मिल्क हेल्प करता है? कि काफी लोग तो कहते हैं नहीं हेल्प कर रहा है मुझे, या आई डोंट नो, मेरे को आज तक ये डिबेट, मैं इस डिबेट में घुसती ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आती है कि लाइक, हे, यूजुअली हाई फैट्स आर गुड फॉर द बॉडी। यस, सो आई नेवर गोइंग टू डिबेट विद एनीबडी, प्रेफरेबली हाँ। आई फॉलो द डेटा एंड साइंस। जी। उसके बेसिस पे जो कहता है, एंड आई प्रैक्टिस ऑन माय ओन बॉडी, रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। आपको अगर आपके हैबिट से रिजल्ट मिल रहा है तो ठीक है। मैं अच्छा। आई एम नॉट गोइंग टू डिबेट और कन्विंस एनीबडी टू एनीथिंग। उनको जो सही लगता है वो करेंगे, जिसको एजुकेट होना वो एजुकेट होंगे। दैट्स अ प्लेन एंड सिंपल थिंग। अब गोइंग बैक टू प्रोसेस फूड वगैरह, सो अभी जो मार्केट में जो भी चल रहा है कि हमें जो फूड पिरामिड दिखाती है कि ढेर सारा हमें रोटी चावल वगैरह खाना चाहिए, उसके बाद में थोड़ा सब्जी रहेगा, फिर फूड फल वगैरह रहेगा, ऐसा रहता है। हम्म। जो रियल डाइट चार्ट होता है वो उसका उल्टा होता है, जिसमें कि ढेर सारा वेजिटेबल्स होता है, ग्रेन्स इतू सा होता है एज अ साइड। तो जी, हमारा जो है आप प्लेट ये में हम सब ना कुछ उल्टा अपडेटेड होता है। चार्ट आप बनाएँगे और फिर मैं उसको यहाँ पे मेरे डिस्प्ले में डालूँगी, जो सिखाया गया है और जो एक्चुअल में होना चाहिए, है ना? जी। हाँ, तो दैट इज द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट कॉज। जी। दूसरा चीज होता है कि जैसे पॉपुलर मिथ कि हमें कैलोरी काउंटिंग करना होता है, हमें देखना होता है कि कैलोरीज इन इक्वल टू कैलोरीज आउट, ऐसे कुछ सिखाते जी, हैं जी, कि जी, यही डायरेक्टली चलना एक्सरसाइज बाकी मोर है। ईट लेस, ऐसे करके अलग अलग मिलता है सुझाव डॉक्टर्स की तरफ से और मेडिकल इंडस्ट्री की तरफ से। नाउ साइंटिफिकली एंड बायोकेमिकली दैट इज नॉट करेक्ट। All calories are not same. If I eat ओके। one nut of 100 calories versus one cube of sugar of 100 calories, those are very very different. दोनों में बहुत फर्क होता है, हमारा बॉडी इसको कैसे समझता है। जी। क्योंकि
नट्स जो है सो वो आपका ब्लड शुगर को ऐसे तेजी से नहीं बढ़ाता है, लेकिन धीरे शुगर धीरे बढ़ाता है। कहते हैं, करेक्ट और करेक्ट। इसी कारण से जो है सो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। हम्म। और जैसे जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, वैसे वैसे करके हमारा सिग्नलिंग पाथवे गड़बड़ाता है। और साथ ही साथ हमारा इम्यून सिस्टम भी उसी को देख करके आगे पीछे होता है उसका, और दैट इज व्हाट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन। जी। कि उसको सही सिग्नल नहीं मिलता है, वो सोचता है कि बॉडी के अंदर में ऐसे हम्म। ऐसे पार्टिकल्स आ गए हैं जिसको कि हटाना है। एंड दैट इज व्हाट कॉजेज मेनी ऑफ दीज डिसीज कंडीशंस, जैसे कि मोटापा जिसको बोलते हैं, हम्म। जिसके कारण होता है। सेम तरह से अभी आपको कैंसर वगैरह हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, फिर हाँ, हार्ट ये अटैक्स दे वगैरह आर हो रहा ऑन है, राइज, आर्थराइटिस। स्पेशली ऑन हाँ। इंडियन पॉपुलेशन। और मैं जब बाहर देखती हूँ, मैंने एक चीज नोटिस की है, सॉरी मैंने आपको कट किया। हम्म, इंडिया में हमें व्हाइट ब्रेड और ये जो सारी रिफाइंड ब्रेड बहुत ज्यादा है, वर्सेस मैं जर्मनी में हूँ। कार्स के बाद यहाँ पे ब्रेड कल्चर भी बहुत बढ़िया है, तो ये लोग ब्रेड बास्केट्स हम्म, और इनका एक संडे वाला। और मैं एक्चुअली इतनी बड़ी ब्रेड लवर नहीं हूँ, लेकिन जर्मनी में आते-आते मुझे यहाँ का जो फ्रुस्टुक कहते हैं, उसमें बहुत बढ़िया हम्म, प्रकार के ब्रेड मिलते हैं। और ये लोग हम्म, काफ़ी साइंटिफिक तरीके से इसमें बहुत सारे टाइप के डिफरेंट ये लोग टाइप करते हैं, लाइक टाइप 1105, 450, 650। आटे का ये बहुत सारे प्रकार का आटा है, और फिर ये स्पेसिफिक आटा स्पेसिफिक चीज के लिए ये बनाते हैं। और जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते भी है ना, तो उसमें आजकल न्यूट्रिशन लेबल भी आते हैं कि इसमें आपको इतना विटामिन मिलेगा, इसमें ये टाइप का हमने ये यूज किया, क्योंकि हम्म, वो भी हम्म, एक जैसे आई थिंक जो एफडीए जैसी एजेंसीज है वो कह रही है कि नहीं, आपको ट्रांसपेरेंट बनना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा आप क्या डाल रहे हो, ताकि क्योंकि कंज्यूमर के पास भी उतना हक है जानने के लिए कि मैं अपने शरीर में क्या ले रहा हूँ, यू नो। सो यस डॉक्टर correct। वेट, प्लीज कंटिन्यू। हाँ। सो जहाँ तक बात आता है वीट वगैरह का, तो जी। जो वीट हम लोग अभी खा रहे हैं, गेहूं किसी भी प्रकार का, भले वो आपका रवा हुआ, हम्म। मैदा हुआ, आटा हुआ, कोई भी। सो ऑल ऑफ दीज वीट जो हम लोग खा रहे हैं, वो अभी से करीबन 70 साल पहले मॉडिफाई किया गया काफी हद तक। क्योंकि जो ओरिजिनल वीट होता था वो 6 फुट ऊंचा होता था, जी। और बहुत ही छोटा और कम क्वांटिटी में पैदा होता था। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में उसमें बहुत सारे जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया, और उसके बाद में ग्लूटेन नाम का एक प्रोटीन होता है कंपोनेंट। जो कि हम्म। कंपोनेंट को वो बढ़ाया गया, ताकि उसका जो टेक्सचर है, हम्म। ताकि अच्छा क्वालिटी का ब्रेड बने। वैसा ब्रेड जो है बनाने के लिए, या रोटी वगैरह बनाने के लिए, उसमें खिंचाव चाहिए होता है, तो वो ग्लूटेन से आता है। ठीक है। सो जब उसको मॉडिफाई किया गया, तो उसमें कुछ कुछ ऐसे ग्लूटेन भी आए जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन लेके आते हैं, जी। नॉर्मल लोग में भी। सो इसी कारण से दो जो वीट हम लोग खा रहे हैं अभी, इट इज नॉट द सेम वीट जो कि अभी से 200-500 साल पहले लोग खाते थे। एंड अगेन गोइंग बैक टू दैट ओरिजिनल एग्जाम्पल, कि वो फूड पिरामिड में अगर वो खाते भी थे तो वो बहुत ही साइड क्वांटिटी होता था, इट वॉज नॉट द मेन सैंडविच। सैंडविच में ब्रेड बाहर से होता है, इतना सा सब्जी होता है। उनका उल्टा होता था। तो ऑफ कोर्स क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी, दोनों में फर्क है। या। एंड इसी कारण से जो है सब बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। एंड जहाँ तक बात आता है कि वीट का अलग अलग प्रकार का उसके ऊपर न्यूट्रिशन लेबल लगाने का, और उसमें विटामिन वगैरह दिखाने का, तो अलॉट ऑफ इट इज ऑल्सो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। कि अगर ऊपर से विटामिन डाल दिया दिखाने के लिए कि हाँ अच्छा है, लेकिन हेल्थ में सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप क्या खा रहे हैं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपको क्या नहीं खाना है। अगर वाओ। आपने हाँ। एक बॉटल भर करके कुछ पिया, उसमें इतनी सा जहर है, तो वो हेल्दी चीज आपको बेनिफिट करेगा या आपको अनहेल्दी चीज मारेगा? अनहेल्दी चीज मारेगा, राइट। सो करेक्ट। दैट इज वाई एट आवर हाउस एज मच एज प्रेफर्ड, हम लोग वीट को अगर खाते भी तो कम क्वांटिटी में खाते हैं, वो भी फर्मेंटेड होता है। एंड उसके अलावा प्रेफरेबली गो टू मिलेट्स, जो कि उसमें वो सारा चीज नहीं होता है। एंड सेम तरह से चावल इज फार बेटर देन वीट इन दैट सेंस। तो डायबिटिक लोगों को जो बोलते हैं कि आप लोग रोटी खाइए, गलत इट्स है वो। causes more problem. एग्जैक्टली। And many of my relatives died because of the same problem. In fact, हम जैसे भी लोगों को अभी हेल्प करते हैं, ये क्या बोलते हैं, डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए, तो जैसे ही हम उनका गेहूं बंद करते हैं, आधा प्रॉब्लम वहीं चला जाता है। और फिर थैंक जैसे यू। जैसे फूड बदलते हैं तो उससे और असर पड़ता है, एंड बाकी कोई सप्लीमेंटेशन। एंड जहाँ तक बात आता है एक्सरसाइज करने का, तो
exercise versus diet. The contribution is 90% diet, 10% exercise. सो आप एक्सरसाइज करके अचानक से पतले नहीं हो जाओगे. एग्जैक्टली You- आपको आपका डाइट बदलना ही पड़ेगा। correct. डॉक्टर वेद एक चीज और पूछनी है, आपने जैसे मिलेट के बारे में कहा, क्या रागी और जवार की जो अभी ये भी रोटीज बाजरा ये सब भी मिलता है, क्या ये भी बेनिफिशियल है इंस्टेड ऑफ गेहूं? Relatively, yes. ओके, Relatively, it's better. अगर आपको But रैंक करना होगा 1 to 5 में, तो आप मिलेट को नंबर 1 रैंक करेंगे मेरे हिसाब से, उसके बाद फिर क्या आएगा? सो वीट तो उस लिस्ट में आएगा भी नहीं क्योंकि हार्मफुल. बट ऑफ कोर्स है तो है, आप क्या कर है सकते हैं, तो लोग है। खाते हैं. तो उसके लिए भी एक रास्ता अभी रिसेंटली रिसर्च में आया था कि साउथ इंडिया में एक प्रोफेसर या रिसर्चर ने क्या किया कि उसमें वो कटहल जो होता है, जैक फ्रूट, जी रॉयल जैक जी फ्रूट का जी। पाउडर को डाल करके फिर हाँ, वो आटे में डालते हैं, तो उससे डायबिटीज का सिम्टम्स कम हो जाता है. मैंने ये भी बट सुना वही है एक. कि मशरूम का भी पाउडर बनाया था पिज्जा बेसिस के लिए, मैंने 2-3 साल पहले सुना था, जैसे यहाँ पे हाँ. EIT फूड्स करके है, वो हम्म. इस रिसर्च में वो लोग काफी आगे हैं, बट या आई डोंट नो, लाइक मैंने कभी आज तक इसको कभी मैंने सुपरमार्केट में अब तक नहीं देखा है। जी आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ. सो मेन चीज ये है कि एज मच एज पॉसिबल अवॉइड एट द फर्स्ट प्लेस. हम्म, अगर गेहूं खाए बिना रह सकते हैं तो क्यों नहीं. क्यों नहीं? लेकिन अगर नहीं रह सकते तो ठीक है, तो उसमें फिर वो आप एक कटहल का आटा को डालोगे. यस। अगर स्विच करना है तो फिर आप ज्वारी की तरफ स्विच करो. वो एक दिन में स्विच नहीं होगा, समय के साथ स्विच करना पड़ेगा क्योंकि बचपन से आदत है वही खाने का. जी। मेरे पापा मम्मी मम्मी तो रोटी खाते हाँ, गेहूं का, क्योंकि उनके लिए तो हमारे जो नॉर्मल है. हाँ, मैंने ये भी सुना है, जैसे गट हमारा दूसरा ब्रेन है, तो वो क्रेव करता है, वो जो अंदर उसमें बैक्टीरिया होते हैं, वो आपको कहती है, नहीं-नहीं मुझे यही खाना है। तो लोग कहते हैं ना मैं अपना हंगर नहीं कंट्रोल कर पा रहा। जैसे बाहर के डायटीशियन क्यों ये खा रहे हो? ऐसे स्ट्रिक्ट रेजिम वगैरह करते हैं। वो नहीं होता है। द एक्चुअल रियलिटी सबसे पहले तो अपने गट बैक्टीरिया को भी ठीक कीजिए। वो मैंने खुद अपने आप पे भी इम्प्लीमेंट किया और मैं आई एम सीइंग द डिफरेंस, लाइक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऑटोमेटिक सेल्फ कंट्रोल एक वापस आ गया, क्योंकि इतने साल से हम कोका कोला पी रहे हैं, प्रोसेस्ड शुगर, माज़ा, फैंटा, फ्रूटी, पता नहीं हमने सब मैगी वैगी यही तो खाया है। बच्चे यही खाते हैं और मैं भी बचपन में यही खा के बड़ी हुई हूँ। यस. तो आई आई एंड अभी मैंने ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे पिछले 1.5 साल में, जब से मुझे ज़्यादा अवेयरनेस इसके बारे में आई है, मैंने काफ़ी हद तक इसको काफ़ी कम कर दिया है। जी, Brilliant. you can continue. Yeah. So, and in fact, gut is the first brain because हमारा जो ये पार्ट ऑफ बॉडी है दैट हाँ, इवॉल्व लेटर अच्छा, ओके। एज कम्पेयर टू द पेट. क्योंकि अगर जो सी में जो एनिमल्स मिलते हैं जी। उनका ये पार्ट बहुत कम होता है, लेकिन उनका पेट तो हाँ, चलता है. हाँ, और राइट. मैंने तो ये पहले भी गट आया पहले और गट उसके आया। बाद में जो है सो दिमाग दिमाग आया. हाँ, सो यहाँ से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग पाथवे चलता है. इनफैक्ट मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मेरी वाइफ वो अमेरिकन है. जी। उनका पालन पोषण अमेरिका में हुआ, तो जैसे ही वो इंडिया गई, मेरे साथ वहां पर इंडिया में रही, तो वहां पर रोज पानी पूरी चल रहा था उनका. तो अब हुआ ये कि इनका क्रेविंग इतना बढ़ गया था कि रोज शाम को एक समय पे घंटी बजेगा और जाने का बाहर. हुँ, बट जैसे ही हमने उनका 3 डे क्लेंस होता है जिसमें कि हम लोग सारा शुगर सारा कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को हटा देते हैं एंड सिर्फ सब्जियां खाते हैं और कुछ कुछ सप्लीमेंट्स खाते हैं, जिसकी मदद से वो गट का बैक्टीरिया रीसेट हो जाता है. जैसे ही वो किया, 3 दिन के बाद उनका सारा क्रेविंग ऑलमोस्ट चला गया. पानी पूरी दिख रहा है लेकिन अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रहा कि हाँ, हाँ खाना क्योंकि गट को अब पता चल गया है कि गट वो सिग्नल नहीं भेज रहा है। ये बहुत है. इम्पोर्टेंट है लोगों को समझाना। लोग बहुत गिल्ट में चले जाते हैं, स्पेशली जो बेचारे वेट लॉस करने वाले होते हैं, जो 5-6 दिन एकदम, मतलब आज तो मतलब छठे दिन में तो हिम्मत टूट ही जाती है। और रात को इंसान करेक्ट. आइसक्रीम, पाव भाजी खा ही लेता है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उनको ये नहीं सब पता है, और काफ़ी सारे डायटीशियंस को भी नहीं पता, क्योंकि दे आर नॉट मेडिकल रिसर्चर्स। तो मैं ये ऑडियंस को ये कहना चाहूँगी, मेडिकल रिसर्च इज़ ऑलवेज़ कटिंग एज, और इवन बहुत सारे जो ऑलरेडी प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनके पास भी इंफॉर्मेशन धीरे-धीरे जाती है, रिजल्ट्स धीरे-धीरे जाती है। इसीलिए इस पॉडकास्ट का मेन गोल यही है कि सिंपल डाइजेस्टेबल पॉइंट से हमें हेल्थ के सिंपल हैक्स पता चले, तो आप डे टू डे लाइफ में उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। एंड हाँ, सिंपल
चीजें, या साइंस की चीजें सिंपल होनी चाहिए। आपका और मेरा काम है उसको सिंप्लीफाई करना। जी। करेक्ट। एंड इसमें आई विल रैप अप विद दिस पॉइंट कि एज मच एज हम लोग ऐसे देश से आते हैं जहाँ पे सब कुछ जुगाड़ पे चलता है, जी। तो कर सकते हैं जुगाड़ और हैक्स लगा सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अभी से जैसे कि मेरे पापा है, वो उनका एज 71 है, ही स्टिल प्लेज फुटबॉल विथ वाह। जस्ट। तो उसके पीछे कारण ये है कि नॉर्मल जो भी लोग होते हैं, हेल्दी लोग, वो लोग इतना ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट और हैक्स की तरफ नहीं जाते। दे करेक्ट। मेंटेन हैबिट्स, दे सिस्टम्स, मेंटेन हैबिट्स एंड प्रोसेस। सिस्टम्स, करेक्ट। तो एक बुक है जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, विच विल बी वेरी वेरी यूजफुल इन दिस सेंस, वेयर द ऑथर टॉक्स अबाउट कि हमारा जो दिमाग होता है वो ऐसा चलता है कि उसको एक सिग्नल मिलता है तो उसके हिसाब से वो काम करता है। तो अगर घर में आपका सामने में मीठा आइटम रखा हुआ है, तो दिमाग को अपने आप ट्रिगर जाएगा, और फिर उसको खाएंगे तो उसका फीलिंग आएगा, फिर वो रिपीट चलता रहता है। तो जैसे जैसे वो न्यूरोसाइंस की मदद से वो हमारा हैबिट बना था, हैबिट को तोड़ने के लिए भी वैसे ही रिवर्स में जाना पड़ता है। तो उस बुक में उसके बारे में अच्छे से डिटेल में दिया है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड फॉर समबडी हु इज ट्राइंग टू ब्रेक और मेक न्यू हैबिट्स टू रीड अ बुक लाइक दैट, बिकॉज विल पावर 5 दिन तक चलता है। जनवरी 1 को सब लोग जिम ज्वाइन करते हैं, लेकिन 5 दिन के बाद, एक महीने के बाद, 90% लोग का छुट्टी हो जाता है। यही तो है। राइट। बट यही द तो वंस है। हु हाँ, जो। जी जी, आप कंप्लीट हाँ कीजिए द जी। वंस द वंस हु सस्टेन आर द वंस हु रन देयर लाइफ ऑन सिस्टम्स एंड हैबिट्स। So it is very, very important कि we shift our focus from hacks or immediate things towards doing things which are long term। कि आपका प्लेट का कंपोजिशन कैसा है, सबसे पहले खाना का प्लेट का, कि आपका सब्जी ज़्यादा है कि आपका गेहूं ज़्यादा है। फिर साथ ही साथ आपका सोने का पैटर्न, उठने का पैटर्न कैसा है, आपका दिमाग में क्या क्या इनपुट आ रहा है सोशल मीडिया का, नेगेटिव चीज़ों का, तो ऑफ कोर्स फिर आपको और क्रेविंग आएगा वैसे ही चीज़ों का। सो ओवरऑल डॉक्टर वेड, मेरे को द थोड़ा ये कंट्रोल। बताइए कि नेगेटिव इंफॉर्मेशन के वजह से जब हम कंज्यूम करते हैं उससे क्या ज्यादा भूख लगती है? ऐसा कुछ है कि रियली? वाह, ये करेक्ट, मुझे हाँ। नहीं पता था। क्योंकि आपका आपका जो सिग्नलिंग पाथवे है वो वैसे ही काम करता है। क्योंकि रियली? आपको जब स्ट्रेस होता है तो आपको या तो भूख अचानक लगती से है। भूख सारा बंद हो जाएगा, और या फिर बहुत सारा भूख लगेगा। सो हाँ। कम लेवल पे स्ट्रेस पे जो है सो आपको भूख लग, क्रोनिक स्ट्रेस के कारण जो है सो लोगों को भूख लगना ज़्यादा चालू होता है, रात को नींद कम आता है, और रात को नींद कम आएगा तो फिर बॉडी को लगे दिन चल रहा है तो और खाओ, और फिर वो एक साइकिल में रिपीट होता रहता है। दैट इज न्यू इंफॉर्मेशन टू मी। ओके। गुड टू नो। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि आपका जो स्क्रीन का ये ब्लू स्क्रीन जो चलता ब्लू है, लाइट, ब्लू लाइट, हाँ। हाँ हाँ, ब्लू लाइट, तो उससे भी बॉडी को लगता है कि अभी दिन चल रहा है। करेक्ट, जो हम And, लोग इसके, हाँ, तो उसको पता नहीं हम्म, चलता कि अब मुझे सोना है। हाँ, ना सोने से तो, क्योंकि आपके ब्रेन को सफिशिएंट रेस्ट नहीं मिला है फटीग के कारण, फिर उसको भूख लगती है, फिर उसको स्ट्रेस फील होता है, फिर आप और खाने लगते हो, राइट? तो फिर ये एक बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो करेक्ट मच। फिर करेक्ट। ये इंफॉर्मेशन तो आई होप हमारे ऑडियंस को बहुत बेनिफिट किया होगा। जी। एब्सोल्युटली। जी। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड? या, आई वांट टू लाइक, मेरे मेरे पास जो लास्ट क्वेश्चंस हैं, जो मैंने भी जैसे लाइफ में भी गट गट गुड गट बैक्टीरिया, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, ये जो सब जो होते हैं, ये सारी जो कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स है। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने अपने आप को एक डिटॉक्स क्लेंस में डाला था, और फिर मैंने खुद गुड गट बैक्टीरिया लिया, काफी लंबे समय तक लिया। और जब मार्केट में अनफॉर्चुनेटली जो मैं कंज्यूम कर रही थी जब नहीं अवेलेबल था, 1 डेढ़ महीने मुझे नहीं वो मिला, तो मुझे रहना पड़ा उसके बिना। और फिर मैंने देखा कि मेरा बहुत ही ज्यादा खराब हालत हो गया, सिंपल चीजें नहीं डाइजेस्ट हो रही थी। और हाँ, मैं न्यूट्रास्यूटिकल्स और गुड गट बैक्टीरिया कैप्सूल्स की मदद लेके अभी जैसे एक बहुत लंबे अरसे से अभी मेरी हेल्थ काफी, मेरे को लगता है, ट्रैक पे आ गई है। मेरा गट हेल्थ की मैं बात कर रही हूँ। तो गट का जो ब्रेन ब्रेन फंक्शन है, आप जो कह रहे हैं, जो ओरिजिनल ब्रेन है, वो अभी काफी सही हुआ है। और इसकी अवेयरनेस भी लगभग कोरोना के बाद ही, इसका वो एक काफी पॉपुलर बुक है जो काफी फेमस हुआ था, एक आई थिंक फीमेल बायोलॉजी साइंटिस्ट, अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, बट मैं बाद में डेफिनेटली उनका बुक और इस पर डेफिनेटली इंफॉर्मेशन डालूंगी। बट
अ, आपको क्या लगता है कि आप भी एक न्यूट्रास्यूटिकल बैकग्राउंड आप प्रिस्क्राइब करते हैं, तो क्या इसके बारे में आप बता सकते हैं कि ये कितना मॉडर्न लाइफस्टाइल में, मॉडर्न डे में ये कितना यूज़फुल है? ठीक, सो जैसे कि मैंने बताया कि अ, हमारा फूड जो है सो काफी ज्यादा मॉडिफाई हो चुका है। जैसे कि गांव में जो ऑनियन मिलता है वो इतना छोटा सा मिलता है, जी, पहले इतने यहाँ सुपर बड़े-बड़े मार्केट होते में थे। मिलता है 1 किलो भर का। तो ऑफ कोर्स उसमें वो न्यूट्रिशन कंपोनेंट हैज रिड्यूस बिग टाइम। सिंस अच्छा, 1930s 40s से वो न्यूट्रिशन कंपोनेंट घटता जा रहा है एंड हुँ, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि करेक्ट। हमारा काम करने का इंटेंसिटी बढ़ता गया है और हमारा न्यूट्रिशन घटता जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो ऑफ कोर्स कुछ कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़ेगा। सो वी रेकमेंड पीपल टू बी ऑन सम काइंड ऑफ अ डाइटरी सप्लीमेंट, but again from proper natural sources where there is no chemical manufacturing, बल्कि it is coming from the plants, organic हुँ, plants ऐसे करके आ रहा है, ताकि वो हमारे बॉडी के लिए कोई नया चीज लेके नहीं आएगा अंदर में केमिकली मैन्युफैक्चर्ड, बल्कि जो हम लोग नॉर्मल खाना खाते हैं उसी को कॉन्सेंट्रेट करके टैबलेट के फॉर्म में दे दिया। नाउ अगेन, सप्लीमेंट इज अ सप्लीमेंट, इट कैनॉट रिप्लेस द मेन डाइट। हुँ, जो मेन डाइट होता है दैट इज द मेन थिंग। हुँ, उसके अलावा एडिशनल सप्लीमेंट लेकर के हम गैप्स को फिल करते हैं। एंड गोल ये भी होता है कि एक बार जब आपका बॉडी हील हो चुका है और नॉर्मल स्टेट पे पहुंच गया है, तो बिना सप्लीमेंट के भी क्या हम रह पाएंगे, वो भी ट्राई करने का होता है। कि एक बार अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, आप अपने आप को हैबिचुएट कर चुके हो अच्छे डाइट के लिए, तो जस्ट मेंटेन दैट। एंड बिना सप्लीमेंट के भी इफ यू कैन मेंटेन, ग्रेट, यू डोंट नीड द सप्लीमेंट ऑल्सो। अब जहां तक बात आता है कि इज सप्लीमेंट इवन रिक्वायर्ड, सो माय आंसर इज यस इन मोस्ट केसेस। क्योंकि जैसे कि अभी आप वो न्यूज़ वगैरह में या फिर मैगजीन से पढ़ते हो कि सुबह सुबह उठ करके धूप में खड़ा होना चाहिए विटामिन डी के लिए। जी। सो वेरी वेरी बिग मिथ, क्योंकि तुरंत में जो है एक थैंक यू स्टडी फॉर किया गया। सेइंग दैट। मैं जब ये हाँ बोलती हूँ ना, मेरे को जूते पड़ते हैं, बस मेरे को बोलती है तूने ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर ली। मैं कुछ नहीं हाँ बोलती, मैं हाँ, जिसको जो करना है करो, मुझे इन्वॉल्व मत करो, टू correct, ईच हिज ओन। हाँ। बट थैंक यू फॉर तो सेइंग, सेकेंडिंग दैट थॉट। या yes. So statistically, it has been shown कि 80 to 90% ऑफ जनता जो जूते फेंकते हैं, they are the ones who are vitamin D deficient. डेफिशिएंट। Okay. हाँ, और ये मैं इंडियन पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ। Correct, हम correct, कह रहे हैं ना, हम हमारे यहाँ पे तो 365 डेज सन है, हम तो सन में है, हमारा तो नेचुरल टैनिंग है, नहीं कुछ प्रोसेस नहीं हो रहा है, बॉडी रिजेक्ट कर correct, रहा है। या correct. तो उसके पीछे कारण ये है कि एक रिसर्च पेपर था जो कि तिरुपति से पब्लिश किया गया, तिरुपति इज इन साउथ इंडिया, राइट? तो वहां पर तो धूप काफी होता है। तो वहां पर वो स्टडी की है कि दिन में कितने बजे से कितने बजे का धूप जो है सो सही होता है आपको विटामिन डी पैदा करने के लिए। तो 9 बजे के पहले तो विटामिन डी ऑलमोस्ट बनता ही नहीं है बॉडी में। सो यू नीड टू बी इन द सनलाइट एनीवेयर बिटवीन 11 a.m. till 2 p.m. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, दिस इज एंड द विथ गुड हैंड्स एंड टाइम। लेग्स एक्सपोज्ड, जिस समय कि हम लोग ऑफिस में बैठे होते हैं और नहीं, बाहर निकलेंगे तो सनस्क्रीन लगा करके निकलेंगे, करेक्ट। कपड़े पहन करके। हाँ, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर कॉमन पीपल टू हैव एनफ विटामिन डी थ्रू द सनलाइट। अब जहां तक बात करता है कि हाँ हम लोग अलग अलग तरह का फल सब्जी खा करके विटामिन डी ले लेंगे, ठीक तो ठीक है। अगर इफ यू थिंक सो सो वेल, देन आपका ब्लड रिपोर्ट बताएगा, क्योंकि बेटा झूठ बोल सकता है लेकिन डेटा नहीं। गुड वन। सो आप जी। अपना साल में एक बार ब्लड रिपोर्ट लीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा कि कितना सही है कितना गलत है। अगर आपका नॉर्मली मेंटेन हो रहा है तो ग्रेट, नथिंग बेटर देन दैट। अगर नहीं हो रहा है तो इट्स टाइम टू चेंज। डेफिनेटली टाइम टू चेंज एंड टाइम टू रिकवर। सो कैन यू, आप थोड़ा और आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में और आपका जो मिशन है वो भी थोड़ा हमें बताएंगे, तो इट वुड बी वेरी नाइस। ठीक है। सो बाय बैकग्राउंड अभी से 15 साल पहले मेरे को माइग्रेन था, मेरे को चश्मा लगा हुआ था, मेरे को ब्लोटिंग था, जी। बचपन में मेरे को शायद फैटी लिवर भी था। हाँ, उसका डायग्नोसिस नहीं किया गया, लेकिन जैसा सिम्टम बता रहे थे लोग कि फैटी मेरे को लिवर ऐसा था। था। So, because of those kinds of things, I was given a lot of medications and prescriptions all across the country। मेरे को चश्मा लगा हुआ था अभी से 15 साल पहले। जैसे जैसे मैंने डाइट और लाइफस्टाइल को बदला, मेरा माइग्रेन चला गया, फैटी लिवर चला गया,
ब्लोटिंग चला गया, अभी चश्मा नहीं है। उसके बाद मैंने correct, पीएचडी भी कर लिया। पीएचडी खत्म किए हुए exactly. 8 साल हो गए, अभी तक चश्मा नहीं लगा मेरे को। ठीक है। सो इन दैट सेंस आई वाज एबल टू रिवर्स अ लॉट ऑफ हेल्थ कंडीशंस व्हिच आर कंसीडर्ड टू बी लाइफ टाइम बर्थ, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को बोल दिया था कि आपको Exactly. जिंदगी भर चश्मा लगाए घूमना है। ठीक है। सो सेम तरह से मेरी वाइफ का, जैसे मैंने बताया कि उनको भी जो है पीसीओएस और इनफर्टिलिटी वगैरह का चैलेंज हुआ था 18 साल की एज पे। डॉक्टर ने उनको भी बोला था कि आपको जिंदगी भर बेबी नहीं होगा, और ये दवाई खाते रहना पड़ेगा आपको, हार्मोनल थेरेपी वाला। बट एज वी चेंज द थिंग्स, सारा सिम्टम्स रिवर्स हुआ, कंसीव किया नेचुरली और होम बर्थ किया बिना हॉस्पिटल। ठीक है। ऑफ कोर्स हमारे हर केस में जो है सब ट्रेन प्रोफेशनल्स वेर देयर हु आर इनटू नेचुरल हेल्थ। So in that sense, whatever we did in our own home is what we share with the people, कि भाई how they can stay healthy by methods in the kitchen, क्योंकि solution to good health Is in your किचन में होता kitchen. है, हॉस्पिटल में नहीं। हॉस्पिटल में बीमारी को जी, मेंटेन करते हैं, जी. खास करके क्रोनिक वाले। हॉस्पिटल इज इम्पोर्टेंट बट ओनली फॉर इमरजेंसीज। एक मेजॉरिटी ऑफ द कहावत है ना, जो द मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट इज नॉट द 5 स्टार होटल बेड बट द फर्स्ट क्लास बेड ऑफ आईसीयू। ये सारे मेडिकल वाले यही लाइन मार के, ऑफ कोर्स हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स आर इम्पोर्टेंट, जैसे कुछ बहुत ही खराब दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, महामारी हो गई, वो एकदम एज केसेस और एक्सट्रीम केसेस है। बट डे टू डे लाइफ में जो 80-90% जो हम कंट्रोल कर सकते हैं बहुत सारी चीजें, उसके लिए थैंक यू। आपने इतने सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए और आपने नेचुरल बर्थ के बारे में कहा। शायद हम उसके बारे में अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि एक ये भी है कि आपको पता है सी सेक्शंस ज्यादा करवाए जा रहे हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा पेशेंट लॉस्ट इज, अ पेशेंट क्योर्ड इज अ पेशेंट लॉस्ट, बट ऑफ कोर्स इसमें एनाटॉमी की भी कुछ फैक्ट्स होते हैं। कुछ पेल्विक स्ट्रक्चर्स एनाटॉमिकली नहीं बेबी निकाल सकते, बट हाँ वो पर्सन टू पर्सन रियली डिफर करता है। एंड अगली बार जैसे अगर हम ये भी देखेंगे कि ऑस्टियोपोरोसिस और ये बोन डिफॉर्मेशन रिलेटेड मस्कुलर इश्यूज, हार्ट जल्दी जल्दी हार्ट अटैक्स आना बिफोर 50, बिफोर 45, आई थिंक इट इज ऑल्सो द स्ट्रेस एंड नॉट टेकिंग एक्यूरेट ब्रेक्स, जिसके वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो या Yep. There are lots of things to discuss so on जी, these topics, and definitely keep it open for our next नेक्स्ट discussion. नेक्स्ट डिस्कशन। हाँ, या जो भी लोग इसको देख रहे हैं वो सवाल भेजें ताकि हम लोग उसको एड्रेस कर पाएं। डेफिनेटली वेरी And have a, इंटरेस्टिंग। हाँ, मुझे भी yeah, नई चीजें बहुत पता चली एंड आई एम वेरी श्योर it's going to help so many people out there. Yeah, thank you so much for coming to my podcast and have a good day and a good weekend. Thank you. thank you.